بھارتی وزیر اعظم کا دورہ مقبوضہ کشمیر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ آج اسلام آباد میں موجود کشمیری شاہراہ جمہوریت پر بھرپور احتجاج کریں گے۔ سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے ہندوستان اکھنڈ بھارت کے خواب دیکھ رہا ہے، مودی سن لے۔ کشمیری ہندوستان کی تمام چالوں سے واقف ہے۔ کشمیری قابض بھارتی فوج کو مقبوضہ وادی سے نکال کر دم لیں گے۔ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر پر ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا مزید کہنا ہے بھارتی تسلط میں کشمیریوں کے لیے ہر دن یوم سیاہ ہے۔ نریندر مودی کا مقبوضہ کشمیر کے اندر آنا یا وہاں پہ کسی پیکج کا اعلان کرنا یا وہ کسی اور انداز سے وہ جو ٹریک کرنا چاہ رہا ہے، کشمیری بنیادی طور پہ نریندر مودی اور ہندوتوا کی تمام چالوں کو جان چکے ہیں، اور وہ 75 سالوں سے قربانیاں وہ دے رہے ہیں جو دی ہیں اس کی دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں شاہراہ جمہوریت کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے، اور اس کے ساتھ ظفر آباد کیپٹل اور آزاد کشمیر کے تمام شہروں میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا، اور آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے ہر شہر اور قصبے کے اندر، تحصیل اور ضلع میں احتجاج کیا جائے گا۔ ہندوتوانہ جو نظریات آسمان کو چھو رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذات و پات، افراد و تفرید، اسپیشلی کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر کے ہندوستان کا جو اکھنڈ بھارت کا خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ نئی ای سی ایل پالیسی کے تحت متعدد نام ای سی ایل سے خارج کر دیے گئے ہیں۔ 100 سے زائد افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز کا نام ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف اور فریال تالپور سمیت کئی اور اہم شخصیات کے بیرون ملک جانے پر پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ ذرائع کے مطابق 3000 سے زائد نام نکالے جانے ہیں۔ لسٹوں کی چھانٹی جاری ہے۔ افواج پاکستان کا ملک کے بھرپور دفاع اور ہر قسم کی سازش ناکام بنانے کا عزم ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے واضح کر دیا۔ پاکستان کے خلاف سازش کی کوئی کوشش کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں خطرناک اور سازشوں کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خطرات کے خلاف کام جاری رہے گا۔ سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں جو کرنا ہے۔ کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو وہ آنکھ نکال دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں۔ اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے واضح کر دیا مداخلت ہوئی، خط آیا، مراسلے کا مقصد پاکستان سے عمران خان کو ہٹانا تھا۔ تمام سازش لندن بیٹھے نواز شریف نے تیار کی۔ معاملے پر شہباز شریف معافی مانگے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بنی گالہ میں پریس کانفرنس۔ چیئرمین تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے آرٹیکل 63A کی اوپن سماعت کرنے اور الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ عمران خان نے کارکنان کو اسلام آباد کی طرف مارچ کی تیاریاں کرنے کا بھی کہہ دیا۔ سازش ثابت ہو گئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آ جائے گا، خدا کے واسطے میرے پاس نہ آنا، تمہاری طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن معافی تو مانگو میرے سے کہ کہہ رہے تھے میں ٹھیک نہیں کہہ رہا۔ تو مداخلت ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے کہ لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ، اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا، کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے۔ سارے فیصلے یہ ہمارے خلاف کرتا ہے۔ الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کو آج کہوں گا، کیا 63A یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، عدالتوں کو فوری طور پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے ان کے کیس نہیں سننے چاہیے؟ اگر آپ نے الیکشن بہتر کروانا ہے، ای وی ایم مشین لے آئے۔
बाहर से ओवरसीज पाकिस्तान ने 31 अरब डॉलर उन्होंने भेजा पाकिस्तान। हम रोक रहे हैं उनको वोट देने के लिए। मैं कह रहा हूं कि मुझे भी ECL पे डाल दें, क्योंकि मैं वैसे ही बाहर नहीं जाना चाहता। आज मैसेज पहुंचा दिया, अपने सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात। और इमरान खान को इत्तेहादियों के साथ छोड़ते ही साजिश नजर आ गई। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कोई साजिश नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल कहती हैं इमरान खान का सारा बयानिया अपनी मौत आप मर चुका। इमरान खान साजिश का झूठा प्रोपेगेंडा बंद करें। अगर कोई मुल्क साजिश करता है तो क्या वो दावतनामा देता है? फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों इस्तीफा दें? इमरान खान को नालायकी पर निकाला गया। ये तमाशे, ये धमकियां, ये झूठ, ये मुनाफकत, इसको बंद करें। किस चीज़ की तहकीकात? इसकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो प्रेस रिलीज दे चुकी है कि कोई साजिश नहीं। IBISI उसके अंदर वो बहुत कैटेगोरिकली ये बात वाज़िया कर चुकी है कि कोई ऐसा सबूत या एविडेंस नहीं है जिससे इस बात का कोई भी तासुर मिले। गैर मुल्कियों से पैसे लिए जो साबित हो गया है। आपने बाहर फंड रेजिंग की शौकत खानम के लिए, और आपने यहाँ पार्टी फंड्स में पैसे दिए और उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर आपने डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए इस्तीफा दे इलेक्शन कमिश्नर। इमरान खान को ये मानना पड़ेगा कि वो एक हारे हुए शख्स हैं जिसने पाकिस्तान की आवाम को झूठ बोल बोल के सिर्फ लूट मार की है। हाई कोर्ट में पिटिशन करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं पब्लिक होना चाहिए? क्योंकि तुम फॉरेन फंडर हो, क्योंकि तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है। अगर कम से कम शर्म नहीं आती तो कौम से माफ़ी मांगो। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने धमकी आमेज मुबैना खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की खुली समाअत को नामुमकिन करार दे दिया। कहते हैं अगर गद्दारी हुई तो PTI फौजदारी मुकदमा दायर करे। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कहेगी इंक्वायरी अदालत का काम नहीं। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू के दौरान माहिर कानून ने कहा कि इमरान खान मुसलसल आईन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला के हल्फ के हवाले से उनका कहना था सदर या गवर्नर का कोई इख्तियार नहीं कि वो हल्फ लेने में ताख़ीर करे। इस रवैये पर अदालत नोटिस ले सकती है। ये मुतालबा बिल्कुल नामुनासिब है। इस तरह का मुतालबा आप सुप्रीम कोर्ट से कैसे कर सकते हैं? सदर पाकिस्तान ने इनराफ किया, फिर उससे पहले स्पीकर ने इनराफ किया, उसके बाद इनके गवर्नर ने इनराफ किया। तवातर के साथ आप इनराफ करें तो ये तो मैं समझता हूँ कि आइन से बगावत की तरफ ये जा रहे हैं। और अगर ये समझते हैं कि वाकई को बहुत बड़ी साजिश किसी ने की है मुल्क में, तो उसके लिए ये फौजदारी कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल कर देते? पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लाजिम है कि जो शख्स चीफ मिनिस्टर बन जाए या प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो फौरन अपना हलफ ले। सदर और वजीर आजम को कोई इख्तियार नहीं है कि वो 10 मिनट भी उसको डिले कर सकें। दूसरे सियासतदानों के बारे में NRO की रट लगाने वाले इमरान खान खुद NRO मांगते रहे। तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग से काबिल इमरान खान ने NRO मांगा। इमरान खान ने तहरीके अदम एतमाद से काबिल PDM से बैकडोर राब्ता किया। सीनियर सहाफ़ियों ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने मुश्तरका दोस्त और मारूफ कारोबारी शख्सियत को आसिफ अली जरदारी के पास भेजा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को भी अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की सूरत में असम्बलियाँ तहलील करने और इलेक्शन कराने की यकीन दहानी कराई। आसिफ अली जरदारी ने PDM के मुश्तरका फैसले के मुताबिक ताउन से इनकार कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जाते जाते एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मंजूर करा के साथ ले गए। 8 अप्रैल को वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से कैबिनेट डिवीजन को कहा गया कि सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल रहेगी। इस पर 11 अप्रैल से गाड़ी कैबिनेट डिवीजन को दे दी गई, जिसे अब भी साबिक वज़ीर आज़म इस्तेमाल कर रहे हैं। और महंगाई से परेशान कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों के रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है। मजीद तफसीलात कराची से मानिया शकील की इस रिपोर्ट में। रमजान में कराची के बासियों के लिए खुशखबरी। यूटिलिटी स्टोर पर बचत ऑफर का ऐलान। कम कीमत पर अशिया खरीनोश की खरीदारी पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छी जो है वो हुकूमत का इक़दाम है। यहाँ पर जो सहूलत दी गई है, काफ़ी सारे जो गरीब लोग हैं जो इस रमज़ान के महीने में अपने बजट को कवर नहीं कर सकते, वो यूटिलिटी की बेस पे अपने बजट को कवर कर सकते हैं, अपने रमज़ान अच्छे से गुजार सकते हैं। बाहर काफ़ी चीनी पे, आटे पे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हुए हुए हैं, तो यहाँ ये होता है कि जो गरीब आवाम है जो नहीं ले सकते बेचारे, जिनका इस दौर में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है क्योंकि तनख्वाहें भी लोगों की बहुत कम हैं, तो वो नहीं कर पा रहे, तो वो यहाँ अगर आएंगे तो उनको बहुत अच्छा मतलब रिलीफ मिलेगा। आम बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 700 रुपए, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 400 रुपए में दस्तयाब है।
इसके अलावा चीनी 90 रुपए फी किलो के बजाय 70 रुपए, घी 460 के बजाय 406 रुपए और बेसन 180 के बजाय 170 रुपए में दस्तयाब है, जबकि एक शिनाख्ती कार्ड पर एक माह में महदूद खरीदारी ही की जा सकती है। कैमरामैन मोइनुद्दीन के हमरा मानिया शकील, नेओ न्यूज़ कराची। कराची में चंद रोज कबल लापता होने वाली 14 साला दुआ ज़हरा का ताहाल कोई सुराग ना लग सका। बच्ची के वालिदैन का कहना है इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एंटी वायलेंट क्राइम सेल और दीगर इदारे बच्ची को तलाश करने में मसरूफ़ हैं, जबकि तहकीकाती टीमें करीबी इलाकों की CCTV फुटेज भी हासिल कर रही हैं और बच्ची के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन की जाँच पड़ताल भी कर रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, खुर्शीद रहमानी साथ मौजूद है। खुर्शीद रहमानी, बताइएगा तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? कराची में चंद रोज कबल लापता होने वाली 14 साला दुआ ज़हरा का ताहाल कोई सुराग नहीं लग सका है। बच्ची के वालिदैन का ये कहना है कि इनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल और दीगर इदारे बच्ची की तलाश करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तहकीकाती टीमें करीबी इलाकों की CCTV फुटेज और बच्ची के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फोन की जाँच पड़ताल भी की जा रही है, लेकिन ताहाल जो है वो बच्ची का सुराग नहीं मिल सका है। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। दादू की तहसील महड़ के आग से मुतासरा गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों के मकीन सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन ने तहसीलदार महड़ अल्लाह बख्श बख्शी की गाड़ी को रोक लिया। मुश्तहिद मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर और मकामी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि डिप्टी कमिश्नर दादू और दीगर इंतजामी अफसरान मुतासरीन की बजाय सिफारिशी और गैर मुतल्लिका अफराद को सर्वे में शामिल कर रहे हैं। आग से मुतासरा 120 घरों की जगह सर्वे लिस्ट में सिर्फ 70 घर शामिल किए गए। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अरबाब रुस्तमानी से। जी अरबाब। हाँ जी बिल्कुल, दादू के नवाई गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में जो है मुतासरीन मकीन ने दादू के तहसीलदार के गाड़ी को जो है घेर लिया है। मुतासरीन ने रुकावटें रखकर मुख्तियार कार मेहड़ अल्लाह बख्शी से गाड़ी का रास्ता रोक किया। मुतासरीन मुख्तियार कार से घेराव करके नारेबाजी की और इन्होंने का यही कहना है कि वज़ीर आला कहमा के मुतासर घरों पर बनने वाले लिस्ट में सिर्फ सिफारिशी नाम लिखे जा रहे हैं। मुतासर होने वाले घरों में से आधे घर लिखे जा रहे हैं, आधे नहीं लिखे जा रहे हैं। 120 घर जलकर खासतर हुए, वहाँ पर 70 लिस्ट में शामिल हैं। इन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुताबिक किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाब आपका। सहर हो या इफ्तार, लोड शेडिंग से फैसलाबाद के शहरी अजियत का शिकार। कहते हैं कि भारी बिलों की अदायगी के बावजूद कई घंटे बिजली नहीं आती। सहरी अफ्तारी भी अंधेरे में करना पड़ती है। गर्मी के मुताबिक बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो जा रही है। सारी टाइम गैस बंद हो जाता है, सुबह टाइम लाइट बंद हो जाती है। गर्मियाँ है ने भाजी ते रोज़े रखे होंगे ने तो बहुत परेशानी बनती है। बच्चों ने रोज़े रख के सोना होंदा, घड़ी आराम करना होंदा। ये आंदी है जाती है, अगे लोड शेडिंग नहीं सी होंदी है, हुण दोबारा फिर शुरू हो गई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 7 जबकि देही इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली नहीं आती। शहरी अजियत में मुब्तला हैं। सूरत हाल मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू जमील खान, बताइएगा। बिल्कुल, माह रमज़ान में भी पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग से शहर जो है इसके मकीन तंग आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के इलाका यकतूत में, जहाँ पे कई घंटे तक बिजली बंद रहती है, जिसकी वजह से न सिर्फ घरों में ख़वातीन को मुश्किलात का सामना है बल्कि रोज़गार भी मुतासर होता जा रहा है। जानते हैं यहाँ महकमा सेहत सिंध ने 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बच्चों में हफ्ता हिफाजती टीका जात मनाने का ऐलान किया है। वजीर सेहत सिंध कहती हैं 2 मिलियन बच्चों को 12 मोजी बीमारियों से बचाव के लिए ये हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। वालिदैन ताउन करें और अपने बच्चों को हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं। मजीद शफकत अजीज़ की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचो ने EPI हॉल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पैदाइश से लेकर 2 साल तक 2 मिलियन बच्चों को मुफ्त टीके लगाए जाते हैं। इससे काली खांसी, खसरा, नमूनिया समेत दीगर बीमारियों से बचाव मुमकिन है। टीके जो है लगाने से बहुत हमने देखा है कि फ़ायदे हैं। बच्चों की अमवात भी कम हो जाती है, उनकी बीमारियाँ भी कम हो जाती हैं और ये कोई मैं समझती 2 सेंचुरीज़ हो गए हैं इन टीकों की वजह से बहुत सारी बीमारियां
कम भी हुई हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो अस्पताल नहीं चल पा रहे उसे पीपीपी नोट बोर्ड में रखा जाएगा। हैंड्स के तहत चलने वाले अस्पताल पीपीएचआई को दे दिए जाएंगे। हैंड्स का मसला यही हो रहा था कि हैंड्स का जो है उसके ऊपर भी लोगों की शिकायतें थी। हम हर तरीके से हम उसको मॉनिटर करें, हम पैसे दे रहे हैं और ये पब्लिक मनी है। वज़ीर सेहत का कहना था कि अब्दुल कादिर पटेल के वफाकी वजीर बनने से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन MBBS के इम्तहानात लेने से मुतालिक दीगर मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन जुल्फकार के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान, जबकि बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में रात को बादल बरसने की तवक्को है। आज खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, दीर, सवात तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रही हैं नुमाइंदा न्यूज़ आयशा शुएब। बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शाम के औकात में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। शहरी इक़्तिदार में आज भी सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। अगर आज दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो आज दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन के औकात में यही दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जाने के इम्कानात है। गर्मी की शदीद लहर बरकरार है, सूरज भी पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ऐसे ही गर्म और खुश्क रहेगा। वेलकम बैक। फैसलाबाद में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। शहरी कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी। ईद सर पर है, लेकिन महंगाई के बाद किसी किस्म की तैयारी करना ख्वाब बन चुका है। महंगाई वाले ना भाईजान बहुत महंगाई आ, कोई भी हुकूमत आ जाती है वो अपने खजाने भरदी आ, किसी गरीब का कोई सोचती। घ्यो, चीनी, आटा, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हुकूमत आए या जाए, किसी हुकूमत ने कोई फायदा नहीं दिता। जिस तरह के रोटी कपड़ा मकान ही नहीं ज़रूरत, होर भी बंदे दी काफ़ी ज़रूरत होंदियां। सैलरियां ते कोई फोकस नहीं है, जॉबां देने दा वादा ते वो भी नहीं किया पूरा। महंगाई हो गया है कि आसमानों को छू रही है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि हर चीज़ पर रिलीफ दे। हुकूमत की जानिब से महंगाई के सताए अवाम के लिए अशय खुर्दनोश की कीमतों में रिलीफ का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन मुल्तान के सस्ते रमज़ान बाजारों में चीनी और घी के हसूल के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आइए मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुकर्रम खान से। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को सस्ती और मयारी अशाए खुर्दनोश की फराहमी के लिए हुकूमत की जानिब से 11 सस्ते रमज़ान बाज़ार का इनेकाद मुल्तान शहर में किया गया है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़े रिलीफ का ऐलान भी किया गया। चीनी में कमी की गई रेट में, उसके साथ साथ घी, आटा और दीगर अशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी तो की गई है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर और सस्ते रमज़ान बाज़ार में चीज़ें मिल तो रही हैं, लेकिन इसके हसूल के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लंबी लंबी कतारों में ठहरना पड़ता है, रोज़े की हालत में, छुट्टी का दिन भी है, तो शहरी यहाँ पर ID कार्ड जो है हाथों में थामे यहाँ पर मौजूद है। इनसे बात भी कर लेते हैं। सलाम अलैकुम जी। अफरात नहीं है, चीज़ है तो एक पैकेट मिल रहा है, 4 किलो का कहा था मिलेगा, लेकिन एक पैकेट दे रहे हैं आपके सामने, और लाइन लगी हुई है। आप देख रहे हैं हम सारे रोज़ेदार सुबह से खड़े हुए हैं। 9 बजे अभी तक 10 बज गए, अभी तक इन्होंने शुरू अब किया है। यहाँ पर अभी जो शहरियों को मैसर ही नहीं है अभी तक, जबकि आटा वो शहरियों को सस्ता मैसर है। फैसलाबाद में तांदीवाला के इलाके में 2 कम उम्र बच्चियां दरिया रावी में डूब गईं। रेस्क्यू ने एक बच्ची को निकाल लिया, जबकि दूसरी बच्ची की लाश जो है वो निकाल ली गई है और एक बच्ची ज़ख्मी है जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लेंगे जवेरिया नज़ीर से। जवेरिया, बताइएगा, जो बच्ची ज़ख्मी हालत में अस्पताल में मुंतकिल की गई है उसकी हालत कैसी है अब? जी बिल्कुल, वो बच्ची जो है उसे फर्स्ट एड देने के बाद जो है वो रेस्क्यू की जानिब से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि ये तांदियावाला का इलाका माड़ी पतन के करीब जो है वो 2 बच्चियां मवेशियों को नहलाते हुए दरिया रावी में जो है वो डूब गई थी। रेस्क्यू की 4 टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिए। एक बच्ची को तो फौरी तौर पर जो है वो वहां से निकाल लिया गया, जबकि दूसरी बच्ची की डेड बॉडी को जो है वो तकरीबन 35 मिनट के बाद जो है वो सर्च करके निकाला गया है। बच्चियों की उम्रें जो है वो 10 से 12 साल के दरमियान बताई जा रही हैं, और एक बच्ची का नाम रुबीना, जबकि जाँ बहक होने वाली बच्ची का नाम जो है वो रुखसाना बताया जा रहा है। रेस्क्यू ने जाँ बहक होने वाली बच्ची की लाश को जो है वो वुर्सा के हवाले कर दिया है। ठीक है, बच्ची की लाश को वुर्सा के हवाले कर दिया गया है। आप अपडेट कर रही थी, शुक्रिया।
सिंध का कदीम कला दलील कोर्ट हुकूमत की अदम तोजही के बाइस खंडात का मंजर पेश कर रहा है। नवाब शाह से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान काशिफ आबड़ो इस रिपोर्ट में। सिंध के जिला नवाब शाह की तहसील सिकरंड का दलील कोर्ट किला महकमा सकाफत की अदम तवज्जोही के बाइस खंडात में बदल गया है। मुकम्मल तौर पर गोल इस किले के 3 दरवाजे हैं। लोगों ने 2 दरवाजों पर कब्जा करके इन्हें बंद कर दिया है। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया हुआ है, इस पे गौर भी नहीं दे रहे, इस पे बारिश पे इस पे खड्डे हो गए हैं। बाज मुहक्किकीन का कहना है दलील कोर्ट किला सिंध में राय घराना की हुकूमत में तामीर किया गया। ताहम एक दलील ये भी जाती है कि किला चूँकि मुकम्मल तौर पर गोल है, उसे सूर्या खानदान ने तामीर किया जो सूरज की पूजा करते थे। किले की दीवारें 8 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची हैं। दीवार पर पहरा देने के लिए 5 फीट का रास्ता बनाया गया है। तारीखी किला है, उसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए, जैसे ये हमारे हाथों से निकल नहीं जाए। अभी जुबून हालत में पड़ा हुआ है। अगर सिंध हुकूमत इस किले की तज़ीन और आराइश करती है तो इससे न सिर्फ मकामी बल्कि गैर मुल्की सयाहत में भी इजाफा होगा। इस बुलेटिन से इतना ही। आप हमारे साथ रहिएगा।